So we start our discussion about the conic sections, और conic sections में we are going to discuss about the parabola, ellipse and hyperbola in detail. Earlier up to circles we have discussed. So we'll be starting with the second degree equation of that conic, that ax square plus by square plus 2hxy plus 2gx plus 2fy plus c equals to 0. That's the second degree curve, and that second degree curve represents circle, parabola, ellipse and hyperbola as well as pair of straight lines for different conditions. So if I say that it represents a pair of straight line, that means joint equation of two straight lines. So pair of straight lines के लिए, for pair of straight lines, condition is ABC plus 2FGH minus AF square minus BG square minus CH square is equals to 0. Pair of straight lines के लिए ABC plus 2FGH minus AF square minus BG square minus CH square equals to 0. That represents the, if that condition is satisfied, that second degree curve is going to represent pair of straight line, which is nothing but the joint equation of two lines. दो straight lines की joint equation है, combined equation है. यहाँ पे वो जरूरी बात है कि x square का coefficient है a, b is the coefficient of y square, 2h is the coefficient of xy, 2g is the coefficient of x, 2f is the coefficient of y plus constant c is equals to 0. इसमें कहीं आप अपने मन से चेंज मत करिएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म है. पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए दैट दिस वैल्यू मस्ट बी इक्वल्स टू 0, डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 या डेल इक्वल्स टू 0 लिखते हैं, दैट इज दिस. डिटर्मिनेंट फॉर्म में आल्सो इट हैज बीन मेंशन्ड एज AHG HBF GFC. द डिटर्मिनेंट मस्ट बी इक्वल्स टू 0. दैट्स, जो लोग कंफर्टेबल नहीं, डिटर्मिनेंट नहीं आइडिया, ठीक है, आपको ये कंडीशन ध्यान रखना है. That second degree curve represents circle, which already you have discussed. Circles की बात करें तो in case of circles, the determinant must be equals to 0, or this determinant must not be equals to 0. ABC plus 2FGH minus AF square minus BG square minus CH square must not be equals to 0. If it is equals to 0, then it represents pair of straight lines. This value is not equals to 0. In case of circle, yes, you are aware of. कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर. x स्क्वायर का कोएफिशिएंट y स्क्वायर के कोएफिशिएंट के बराबर है. h इज इक्वल्स टू 0. h इज इक्वल्स टू 0. इन केस ऑफ सर्कल देयर इज नो टर्म ऑफ xy की कोई टर्म नहीं होगी, और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर मस्ट बी इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर. इन केस ऑफ पैराबोला अगेन दैट डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल्स टू 0. और ये जो डिस्कशन मैं जो कर रहा हूँ अभी वो पूरे कोनिक सेक्शंस के लिए है. दैट मींस द सेकंड टॉपिक विल बी इलिप्स, थर्ड टॉपिक विल बी हाइपरबोला, और ये सब के लिए रिलेवेंट है. दैट डिटर्मिनेंट मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू 0. दैट मींस दिस वैल्यू मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू 0. इन केस ऑफ पैराबोला h स्क्वायर इज इक्वल्स टू ab. h स्क्वायर इज इक्वल्स टू ab. मैंने आपको बताया a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b इज द कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर and 2h is the coefficient of xy. xy का coefficient है 2h. ठीक. Determinant is not equals to 0 and h square is equals to ab. This is the curve presently जो हम पढ़ने वाले हैं. In case of ellipse, again that determinant is not equals to 0 and h square is less than ab. h square ab से less होगा. And in case of hyperbola, that determinant is not equals to 0 and h square is greater than ab. h square ab से greater होगा. These are the conditions जो आगे आने वाले नेक्स्ट टॉपिक्स के लिए भी आपको ध्यान रखना है. नेक्स्ट टॉपिक इज गोइंग टू बी इलिप्स. फॉर दैट h square must be less than ab, then for hyperbola h square must be greater than ab. ये बेसिक कंडीशन है जो आपको पता होना चाहिए हमेशा. In case of circle, coefficient of x square as well as coefficient of y square both are same,
and there is no term of xy, right? But in case of pair of straight line, ABC plus 2FGH minus AF square minus BG square minus CH square equals to 0. But remaining all conditions, circle, parabola, ellipse, hyperbola, remaining all those curves, that value is not equals to 0. अगर ये डिटरमिनेंट, अगर ये वैल्यू 0 के बराबर होती है तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना? तो ये कंडीशंस आपको हमेशा के लिए ध्यान रखना है. So when we discuss about the circles, circles के केस में जब हम डिस्कस करते हैं जो प्रीवियस टॉपिक था, in that case it's a locus of a moving point which moves such that distance of any point on that circumference of that circle या distance of that moving point from a fixed point always remains a constant. Simple सी बात है. Moving point की distance fixed point से हमेशा constant होती है. That fixed point is the center of that circle and that fixed distance is nothing but the radius of that circle. Moving point की distance fixed point से हमेशा constant होती है, locus. Likewise, when we are going to discuss next three curves, parabola, ellipse and hyperbola, ये तीनों curves भी locus ही हैं. कैसे locus हैं? ध्यान से देखिएगा. There is a fixed straight line, there is a fixed point, and there is a moving point. And in a plane, distance of the moving point, that's the moving point. Distance of a moving point, locus is always of moving point. So distance of a moving point to distance of moving point from a fixed point and distance of a moving point from fixed line. Distance of moving point from a fixed point and distance of a moving point to a fixed line, that ratio always remains a constant. That ratio always remains a constant, and that constant is known to be the eccentricity of the curve. उस कांस्टेंट को एक्सेंट्रिसिटी कहा जाता है. मूविंग पॉइंट, दैट्स अ मूविंग पॉइंट, और मूविंग पॉइंट की डिस्टेंस फिक्स पॉइंट से, दैट फिक्स पॉइंट इज नथिंग बट यहाँ पर जो एस रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, दैट इज गोइंग टू बी, देयर इज गोइंग टू बी टर्म फोकस. तो मूविंग पॉइंट डिस्टेंस फिक्स पॉइंट से और मूविंग पॉइंट की डिस्टेंस फिक्स लाइन से. आप जरूर जानते हैं कि पॉइंट की डिस्टेंस लाइन से इज ऑलवेज टेकन एज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो मूविंग पॉइंट की डिस्टेंस फिक्स लाइन से always bears a constant ratio. That ratio, P point से perpendicular drop किया आपने लाइन के ऊपर, that is PM is the length of perpendicular, then and SP upon PM, moving point के distance fixed point से और moving point के distance fixed line से, that bears a constant ratio and that ratio is nothing but E, eccentricity. ये ratio हमेशा fix होता है. In case of parabola, जो भी आप पढ़ रहे हैं, in case of parabola के केस में E must be equals to 1. E must be equals to 1, that means SP is equals to PM. SP PM के बराबर होगा. मूविंग पॉइंट की डिस्टेंस फिक्स पॉइंट से और मूविंग पॉइंट की डिस्टेंस फिक्स लाइन से इक्वल होगी इन केस ऑफ पैराबोला जो अभी हम कर्व डिस्कस करने वाले हैं. बट रिमेनिंग टू कर्व्स फॉर एलिप्स, that ratio is less than 1, that eccentricity is less than 1. पहली बात तो ये कि ratio is always going to be some positive number. ratio हमेशा एक positive number होगा, but in case of ellipse that ratio must be less than 1. वो ratio 1 से less होना चाहिए. in case of hyperbola E must be greater than 1. that ratio must be greater than 1. वो रेशो ग्रेटर देन 1 कुछ भी हो सकता है, बट पॉजिटिव नंबर ग्रेटर देन 1. रेशो है पॉजिटिव रहेगा, ग्रेटर देन 1. सो दैट फिक्स पॉइंट इज द फोकस, एंड जो फिक्स लाइन मैंने आपसे कही, दैट इज नथिंग बट द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ दैट कर्व. तो ये तीनों कर्व जो आप डिस्कस करने वाले हैं, पैराबोला, देन एलिप्स एंड हाइपरबोला, ऑल थ्री आर लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट which moves under the condition such that its distance from a fixed point and its distance from a fixed line always bears a constant ratio, and that ratio is eccentricity, and that ratio is 1 in case of parabola, that ratio is less than 1 in case of ellipse, and that ratio is greater than 1 in case of hyperbola के केस में वो रेशो ग्रेटर देन 1 होगा. तो ये बात तो ध्यान रखना है, क्योंकि आगे आने वाले तीनों कर्व्स के लिए ये बात रहेगी. That fixed point is known to be the focus of that curve. जो fixed point है उसे focus कहा जाएगा. In case of circles it was the center of that circle. यहाँ कहा जाएगा जो fixed point है that is known to be the
focus of that curve, and that fixed line जिससे पॉइंट की डिस्टेंस ली गई है, that is known to be the डायरेक्ट्रिक्स ऑफ दैट कर्व. और ये दोनों टर्म्स फोकस और डायरेक्ट्रिक्स आने वाले तीनों कर्व्स पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला तीनों के लिए रहेंगे. ठीक है ना. तो ये बेसिक डेफिनेशन फॉर द पैराबोला, देन एलिप्स एंड देन हाइपरबोला, तीनों जगह ये बात रहेगी. और एक और बात क्लियर कर दूं मैं कि पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला की जो इक्वेशंस आप डिराइव करोगे, दैट इज थ्रू दिस डेफिनेशंस ओनली. इसी लोकस की बेसिक डेफिनेशन से आप डिराइव करोगे. SP इक्वल्स टू PM अप्लाई करोगे, you'll be getting the equation of parabola. SP इक्वल्स टू EPM अगर आप अप्लाई करोगे, when E less than 1 you will be getting the equation of ellipse. और SP इक्वल्स टू EPM अप्लाई करोगे, when E is greater than 1 you will be getting the equation of hyperbola. वो हाइपरबोला की इक्वेशन है. ठीक. तो जो लोकस बेस्ड हमने डेफिनेशन की बात करी उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएं. As we have discussed in case of parabola, in case of parabola जो हम डिस्कस करेंगे अभी, SP is equals to PM. P is the moving point, S is the fixed point, PM is nothing but the distance of the moving point from a fixed line. Now, और दो बातें हैं, फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स. जैसे आपसे कहा जाए फोकस ऑफ पैराबोला, जनरल बात करें, is let's say that is x1 y1 है ना. पैराबोला का जो फोकस है वो x1 y1 है. इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन अगर मैं लिखता हूं, लेट्स से दैट डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ दैट डायरेक्ट्रिक्स इज ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0. दैट इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स. ठीक. फिक्स पॉइंट आपको गिवन है, फोकस ऑफ दैट कर्व इज गिवन, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज गिवन. डायरेक्ट्रिक्स क्या है? स्ट्रेट लाइन है, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0. और आपसे कहा गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला. ठीक. फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला. अब आपने मूविंग पॉइंट को x, y कंसिडर किया. बेसिक डेफिनेशन का यूज करेंगे, SP इक्वल्स टू EPM. E is 1 फॉर पैराबोला. अभी जो कर्व हम रिसेंटली अब जो हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज पैराबोला, फॉर दैट E is 1. इक्वेशन ऑफ पैराबोला, तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला रिक्वायर्ड है. तो लेट्स से मूविंग पॉइंट इज नथिंग बट P पॉइंट मैंने कंसिडर किया x, y, और x, y कंसिडर किया, तो SP इक्वल्स टू PM या SP स्क्वायर इक्वल्स टू PM स्क्वायर, राइट. SP is nothing but the distance between the two points. दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस है, इसीलिए स्क्वायर किया सो दैट स्क्वायर रूट का एलिमिनेशन हो. SP is nothing but the distance between the two points. दोनों पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस है x माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू PM स्क्वायर. PM is nothing but the distance of that moving point from the directrix. That is nothing but the perpendicular distance. और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखना है आपको, तो x, y पॉइंट से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ऑन दैट लाइन ax प्लस by प्लस c, since I have taken the point as x, y only, ax plus by plus c modulus of that upon root over a square plus b square, right, and whole square of that, whole square of that, that is SP square. SP equals to PM. तो SP स्क्वायर स्क्वायरिंग कर दिया, सो दैट डिस्टेंस फॉर्मूले में जो स्क्वायर रूट वाली बात है स्क्वायरिंग कर दिया, तो स्क्वायर रूट एलिमिनेट हो गया. PM, that is this PM, length of perpendicular from point x, y on that straight line. That is nothing but if you solve this, you are going to get the equation of parabola. बोले सर सॉल्व करने का मतलब ठीक है, ये रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इट विल बिकम ax प्लस by प्लस c होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा इसका, x माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 होल स्क्वायर, यू विल बी गेटिंग द इक्वेशन ऑफ पैराबोला. अरेंज कर लीजिएगा टर्म्स को, x स्क्वायर y स्क्वायर x y कांस्टेंट इक्वल्स टू 0. और आप अगर वेरीफाई करेंगे तो यू विल बी गेटिंग डेफिनेटली कंडीशन इज h स्क्वायर इक्वल्स टू ab इन केस ऑफ पैराबोला. बट दैट इज अ सिंपल अप्रोच. अभी तो मैंने कल इतनी सी बात करी है कि फोकस आपको गिवन है,
जनरल पॉइंट, ये जनरल इक्वेशन लिखी है मैंने, जनरल इक्वेशन ऑफ दैट पैराबोला, फोकस इज गिवन एज x1 y1, दैट इज अ फिक्स पॉइंट, दैट इज द फिक्स पॉइंट जो वेरिएबल नहीं है, जो फिक्स पॉइंट है, एंड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ दैट कर्व इज ax plus by plus c equals to 0 और इक्वेशन ऑफ कर्व। अब जरा हम स्पेसिफिक हो जाते हैं, स्पेसिफिक हो जाते हैं मतलब you have to find out the equation of parabola when the fixed point focus is given as, let's say, 3 comma 4, equation of directrix is given as 2x plus 3y plus 7 equals to 0। ठीक, फोकस इज गिवन, डायरेक्ट्रिक्स इज गिवन, और आपसे कहा गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। जनरल फॉर्म बात कर रहे हैं, देन विल बी डिस्कसिंग अबाउट द स्टैंडर्ड फॉर्म, फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, देन विल बी डिस्कसिंग अबाउट द वेरियस डेफिनेशन जो बात करते हैं, फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। करिए जरा। Now you have to find out the equation of parabola when the fixed point focus is given as 3 comma 4 and equation of fixed line directrix is given as 2x plus 3y plus 7 equals to 0। पैराबोला की इक्वेशन रिक्वायर्ड है। आपने क्या किया, you have taken a general point p point x comma y on the curve। ठीक, कर्व की इक्वेशन फाइंड आउट करना है तो कर्व पे आपने एक जनरल पॉइंट कंसीडर किया। वी आर डिस्कसिंग द वेरियस टर्म्स रिलेटेड विद द पैराबोला एंड देन स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ दैट, बट एक जनरल बात कर रहे हैं जो हमने डिस्कस किया, एस पी इक्वल्स टू पी एम, वैल्यू ऑफ ई इज 1, इट इज नथिंग बट एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 होल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऑफ दैट डिस्टेंस फॉर्मूला is equals to pm. Pm is nothing but the length of perpendicular from x comma y on the directrix. So it will be 2x plus 3y plus 7 modulus of that। क्योंकि आपने x comma y से आप डिस्टेंस लिख रहे हैं, तो x comma y से 2x plus 3y plus 7 equals to 0 पर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, दैट फॉर्मूला इज नोन टू यू, ax1 plus by1 plus c upon root over a square plus b square, that's what you have applied here, root over 2 square plus 3 स्क्वायर। स्क्वायर रूट रिमूव करना है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ये हो जाएगा x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2x प्लस 3y प्लस 7 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस 9 13, 13 का रूट 13 का स्क्वायर, दैट विल बी 13। ठीक, दैट इज नथिंग बट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। लेकिन हम उसको प्रॉपर्ली अरेंज करके बात कर लेते हैं, देखिएगा, समझ लीजिएगा, बहुत ठीक ढंग से समझिएगा। 13 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y प्लस 9 प्लस 16 plus 25 is equals to 2x plus 3y plus 7 whole square, 4x square plus 9y square। रीजन है क्यों पूरा सॉल्व कर रहा हूँ, 4x square plus 9y square plus 49 a square plus b square plus c square plus 2ab। तो 2ab जब लिख रहा हूँ तो इट विल बी 12xy plus 4 28x plus 42 y, चेक कर लीजिएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, राइट। तो 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 49 प्लस 12xy प्लस इट विल बी 14 इंटू 2 28x प्लस 21 इंटू 2 42y। परफेक्ट है, अरेंज कर लिया जाए टर्म्स को। 13x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर 9x स्क्वायर, 13y स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4y स्क्वायर। फाइन, प्लीज कैलकुलेट 13 या फिर दैट विल बी माइनस ऑफ 12xy। अरेंज करते हुए लिख रहे हैं हम लोग, 13 टाइम्स 6 माइनस 78 and minus 28x minus 78 and minus 28
1 minus 1066, yes, minus 13 into 8, yes, minus 104, minus 42y, minus 146y, 13 into 25, 325 minus 49, 276 plus 276 is equals to 0. ये तो हमने सिंपल अरेंज किया है यार, कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है सच है ना, कोई बहुत परेशान मत होइएगा. इसमें फोकस इज गिवन, डायरेक्ट्रिक्स इज गिवन, आई जस्ट अप्लाइड एस पी इक्वल्स टू पी एम. तो मूविंग पॉइंट के डिस्टेंस फिक्स पॉइंट से और मूविंग पॉइंट के डिस्टेंस फिक्स लाइन से, और उसको बस इक्वेट भर किया, एस पी इक्वल्स टू पी एम किया हमने. एस पी इज दैट डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है. पी एम इज दैट लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम एक्स कॉमा वाई, और स्क्वायरिंग कर दिया बोथ साइड्स, अरेंज किया. बाकी तो सर इतना सब क्यों? दैट इज नथिंग बट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला. इक्वेशन ऑफ पैराबोला वेरीफाई करना है तो वेरीफाई करने के लिए उसको हम चेक कर लेते हैं, बेहतर होगा. देखिएगा, व्हाट इज दैट कंडीशन आई हैव गिवन टू यू. इन केस ऑफ पैराबोला एच स्क्वायर मस्ट बी इक्वल्स टू ए बी. एच स्क्वायर की वैल्यू ए बी के बराबर होना चाहिए. तो एच स्क्वायर की वैल्यू ए बी के बराबर होना चाहिए. तो एच स्क्वायर इन दैट इक्वेशन, कैन यू टेल मी द वैल्यू ऑफ एच? h की वैल्यू 2h इज इक्वल टू माइनस 12. तो h विल बी इक्वल टू, मतलब ये समझ में आनी चाहिए बात आपको. 2h इज इक्वल टू माइनस 12, h इज इक्वल टू माइनस 6 एंड h स्क्वायर विल बी इक्वल टू 36. a is 9, b is 4. I think all are getting this. That condition is getting satisfied here. H square must be equals to AB in case of parabola. In case of ellipse, H square must be less than AB. Ellipse की अगर इक्वेशन होगी तो H square AB से लेस होगा, और in case of hyperbola H square AB से ग्रेटर होगा. ठीक है. और एक और बात जहां पे नोट करिएगा प्लीज, सभी लोग ध्यान से देखिएगा. यहां पर सेकंड डिग्री टर्म्स कितनी है? How many terms are of 2 degree? How many terms are of 1 degree? And how many terms are of constant 0 degree? आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, there are 3 terms which are of degree 2. x square, y square and xy. xy की भी डिग्री 2 है, 1 1 2. These 3 terms are there of degree 2. ये दोनों टर्म्स हैं जो डिग्री 1 की, x और y. And 276 it's a constant degree 0 there. बोले सर उससे क्या फर्क पड़ रहा है? ध्यान से देखिएगा. 9x square plus 4y square minus 12xy, if you observe that, it is 3x minus 2y whole square. a square plus b square minus 2ab. चेक कर लीजिएगा. It is becoming 3x minus 2y whole square, 9x square, ठीक है, 9x square plus 4y square minus 12xy. Perfect. Minus 106x minus 146y plus 276 equals to 0. बोले सर इससे क्या? ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है और वो ये है, जो सेकेंड डिग्री टर्म्स हैं, सुनिएगा ध्यान से. इन केस ऑफ पैराबोला सेकेंड डिग्री टर्म्स forms a perfect square. बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट. पैराबोला के केस में जो सेकेंड डिग्री टर्म्स होंगी वो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगी, जैसा यहां हुआ है 3x minus 2y whole square. That second degree terms forms a perfect square. Right? तो फोकस इज गिवन, डायरेक्ट्रिक्स इज गिवन, एसपी इक्वल्स टू पीएम आपने सॉल्व किया, आपने दोनों बातें वेरीफाई करी है. स्क्वायर इज कमिंग इक्वल्स टू AB as well as second degree terms are always going to form a perfect sphere in case of parabola. Now we discuss the structure of the curve. जब हमने पैराबोला की बात करी, there is a fixed point focus, there is a fixed line that is directrix, and distance of the moving point from fixed point is equals to distance of the moving point from a fixed line. पैराबोला के केस में तो SP और PM बराबर हैं.
देखिएगा ध्यान से, और फिर हम स्टैंडर्ड फॉर्म लेके विल बी सॉल्विंग द कर्व, या विल बी फाइंडिंग आउट द इक्वेशन ऑफ कर्व as well as we'll be discussing the various terms related with the curve. So if I consider a standard form here, और standard form में यहाँ पर दो बातें हैं, one is about the focus which is the fixed point and one is about the directrix which is the fixed line. So to derive the standard form, what we have done, we have taken the fixed point on the x-axis. We are discussing the standard form of the parabola, and we have taken the fixed point on the x-axis. x-axis के ऊपर आपने एक fixed point लिया. Let's say that point is S. That is a fixed point there on the x-axis. x-axis पर है तो y coordinate 0. Fine. Directrix, that's the straight line, which is a fixed line, right? We have taken a line which is perpendicular to the line which is, देखो यहाँ पे focus is the fixed point, directrix is the fixed line, ठीक है, and the straight line which is perpendicular to the directrix, straight line which is perpendicular to the directrix and passing through the focus. ये तो focus हुआ, ये directrix हुआ, right? ये मूविंग पॉइंट है, दैट इज द मूविंग पॉइंट P point which is x, y. Let's say we have taken the fixed point on the x-axis, x-axis के ऊपर fixed point लिया है. Now the straight line which is perpendicular to the directrix and passing through the focus is nothing but the axis of the curve. The curve is parabola here, and that axis is perpendicular to the directrix and passing through the focus, fixed point से pass कर रहा है. Directrix is a line which is perpendicular to the axis. Directrix के perpendicular axis है, axis directrix के बीच में जो एंगल होगा that is going to be 90 degree always. ठीक, अब जो कंडीशन है वो कंडीशन तो क्लियर है हमें कि एस पी पी एम के बराबर होगा. मूविंग पॉइंट की डिस्टेंस फिक्स पॉइंट से और मूविंग पॉइंट की डिस्टेंस फिक्स लाइन से बराबर होगी. ठीक है, हमने अभी अभी बात करी, दोनों डिस्टेंसेस बराबर होंगी. अब पॉइंट जो है वो पॉइंट मूविंग पॉइंट है. पॉइंट मूव करते करते इफ इट इज टेकिंग द पोजीशन, पॉइंट मूव कर रहा है और मूव करते करते इसने एक्सिस पे मीट किया. द पॉइंट जिस पॉइंट पर एक्सिस को मीट कर रहा है, दैट मूविंग पॉइंट मीट्स द एक्सिस, लेट्स से एट पॉइंट V. मूविंग पॉइंट V पॉइंट के ऊपर एक्सिस को मीट कर रहा है, ठीक है. That is nothing but the vertex of the curve. That V is nothing but the vertex of that curve. I have taken the standard form, ऐसा standard form जिसमें axis of the curve is x-axis जिसके ऊपर focus है. Directrix is perpendicular to the x-axis, मतलब ये y-axis के parallel line होगी. x-axis के perpendicular मतलब y-axis के parallel line, right? So point is moving point and moving point meets the axis at vertex. Moving point जिस point पर cut कर रहा है axis को वो vertex होगा, ठीक. According to the definition, ध्यान से देखिएगा, मूविंग पॉइंट की डिस्टेंस फिक्स पॉइंट से और मूविंग पॉइंट की डिस्टेंस फिक्स लाइन से बराबर होना चाहिए. तो ये तो कंडीशन हर जगह सेटिस्फाई करेगा, चाहे जहां पर भी मूविंग पॉइंट की लोकेशन हो. तो ध्यान से देखिएगा, Vs must be equals to Vt. Vs Vt के बराबर होना चाहिए. बोले सर क्यों? क्यों भैया? दैट इज द मूविंग पॉइंट. ये पॉइंट मूव करते करते इस पोजीशन पे आया है, जो कि जिसे हमने वर्टेक्स कहा है. तो वर्टेक्स से या मूविंग पॉइंट की डिस्टेंस फिक्स पॉइंट से और मूविंग पॉइंट की डिस्टेंस फिक्स लाइन से बराबर होना चाहिए, ठीक है. दैट पॉइंट इज वर्टेक्स. उस पॉइंट को वर्टेक्स कहा हमने. वी आर टेकिंग द स्टैंडर्ड फॉर्म. क्लियरली फोकस एज वेल एज वर्टेक्स बोथ आर ऑन द एक्सिस ऑफ द पैराबोला. वो एक्सिस ऑफ पैराबोला के ऊपर है. आई हैव टेकन हियर, सिंस आई एम डिस्कसिंग द स्टैंडर्ड फॉर्म, आई हैव टेकन द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला. वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला आई हैव टेकन एज ओरिजिन. पैराबोला को वर्टेक्स को लिया गया ओरिजिन, ठीक. और वर्टेक्स से लेकर S तक की डिस्टेंस, वर्टेक्स से लेकर फोकस तक की डिस्टेंस, दैट इज 0,0 वर्टेक्स,
लेट्स से इट इज इक्वल्स टू ए के बराबर है। ध्यान से देखिएगा, वर्टेक्स से फोकस की डिस्टेंस ए। कैन यू टेल मी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एस? आप कहेंगे ठीक है सर, एक्स एक्सिस के ऊपर है, वाई कोऑर्डिनेट 0, इट इज गोइंग टू बी a, 0। कैन यू टेल मी द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स देन? दोस्तों ये अगर a है, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी इक्वल टू a, ये भी a होगा, लेकिन ये ओरिजिन से राइट साइड है तो ओरिजिन से लेफ्ट साइड है, तो t के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? इफ आई आस्क यू द कोऑर्डिनेट्स ऑफ t, दैट विल बी -a, 0। And directrix is a straight line which is perpendicular to the axis of the parabola we have taken as x-axis, axis of the curve is x-axis here। तो डायरेक्ट्रिक्स क्लियरली परपेंडिकुलर है एक्सिस के, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन मतलब y एक्सिस या y एक्सिस के पैरेलल लाइन बोलूंगा मैं। तो y एक्सिस के पैरेलल लाइन which is passing through -a, 0, इक्वेशन क्या होगी डायरेक्ट्रिक्स की? x इक्वल्स टू -a। y एक्सिस के पैरेलल लाइन x कांस्टेंट होता है, y एक्सिस के पैरेलल लाइन x इज सम कांस्टेंट, और x अगर कांस्टेंट है x इज इक्वल टू -a। ठीक, तो डायरेक्ट्रिक्स यहां पर होगी x इक्वल टू -a, और यू कैन से x प्लस a इक्वल टू 0। बोले सर हम कर क्या रहे हैं? हम कर्व की इक्वेशन फाइंड आउट कर रहे हैं। तो कर्व की इक्वेशन फाइंड आउट करना है तो दो बातें रिक्वायर्ड हैं। कौन सी दो बातें? फोकस और डायरेक्ट्रिक्स। फोकस और डायरेक्ट्रिक्स। फोकस क्या मिला आपको? a, 0। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या है? x plus a equals to 0। According to the basic definition, SP equals to PM, P पॉइंट x, y है। दोस्तों P पॉइंट के डिस्टेंस, ध्यान से देखिएगा, P पॉइंट के डिस्टेंस फोकस से, स्क्वायरिंग कर देता हूं यहीं पर मैं, x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू PM स्क्वायर। PM इज नथिंग बट द मूविंग पॉइंट की डिस्टेंस फिक्स्ड लाइन से, x प्लस ए इक्वल टू 0 पर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। कैसे लिखोगे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर? x प्लस ए डिवाइडेड बाय ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर and square of that। x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ax। ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये कैंसिल हो जाती है टर्म यहाँ पर। What you are getting here y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, और दोस्तों y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax is nothing but the equation of parabola, an equation of parabola in the standard form। ये जो डेरिवेशन हमने किया है, ये डेरिवेशन किया है पैराबोला की इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म में, एंड दैट इक्वेशन इज कमिंग एज y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। That is the equation of curve। Now we will be discussing the terms related with that and what is going to be the structure of that curve। लेकिन that is the equation of curve in standard form। Standard form क्यों कहा गया? Because we have taken the axis of the curve as x-axis। कर्व की एक्सिस को हमने x-axis लिया है। वर्टेक्स ऑफ दैट कर्व we have taken as, जिस पॉइंट पर कर्व को मीट कर रहा है, कर्व जिस पॉइंट पर कर्व मीट कर रहा है एक्सिस को, दैट इज द वर्टेक्स। दैट वर्टेक्स we have taken here as ओरिजिन। वो वर्टेक्स हमने ओरिजिन लिया। ठीक है, बोले सर ये वीएस कैसे ले लिया? ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी सम कांस्टेंट, जो कांस्टेंट लेंथ होगी उसको मैंने ए से डिनोट किया, दैट इज द ओनली पॉइंट। If it is a, it is also going to be equals to a, but it is on the left side, so it will be minus a, 0। Directrix is the line perpendicular to the axis। Directrix x axis के perpendicular है, तो x axis के perpendicular line है ना? तो क्या लिखोगे आप उस केस में? y axis के पैरेलल होगी, y axis के पैरेलल होगी तो x is some constant, which constant? -a, 0 से पास कर रहा है तो x is constant, that constant is माइनस।
डायरेक्ट्रिक्स आ गई, फोकस आ गया, और क्या चाहिए, कुछ नहीं, सफिशिएंट है। SP इक्वल टू PM आपने अप्लाई किया और y स्क्वायर इक्वल टू 4x आपको कर्व की इक्वेशन मिली, ठीक है। y स्क्वायर इक्वल टू 4x, इस कर्व का स्ट्रक्चर भी समझे। पहली बात, y स्क्वायर इक्वल टू 4x स्टैंडर्ड फॉर्म हमने डिस्कस किया है, बिकॉज वी हैव टेकन द वर्टेक्स ऑफ दैट पैराबोला एट ओरिजिन, फोकस ऑफ दैट कर्व इज at a comma 0, axis of the curve is x axis। सारी बातें अभी अभी कैलकुलेट करी हमने। एंड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ दैट कर्व y एक्सिस के पैरेलल, x इज कांस्टेंट एंड x इज इक्वल टू माइनस ऑफ a। इनफैक्ट उसी की हेल्प से हमने फाइंड आउट किया था इक्वेशन ऑफ कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। एक बात तो ध्यान रखिएगा, डिग्री ऑफ y इज इवन। सबसे पहली बात, डिग्री ऑफ y इज इवन, y की डिग्री इवन है। इन प्लेस ऑफ y इफ यू कीप माइनस y, देयर इज नो चेंज इन द इक्वेशन ऑफ कर्व। इन प्लेस ऑफ y इफ यू कीप माइनस y इन द इक्वेशन ऑफ कर्व, देयर इज नो चेंज इन द इक्वेशन ऑफ कर्व, दैट कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। सबसे पहली बात, कर्व जो बनेगा कैसे बन गया, तो कर्व इस, हम उसको देख रहे हैं कि क्या वैल्यूज ले सकता है, क्या नहीं ले सकता, और स्ट्रक्चर कैसा होगा। वी आर लुकिंग फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ द कर्व, तो कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। ये जो भी कर्व बनने वाला है ये एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। द रीजन इज, in place of y if you keep minus y in the equation of curve, if you keep minus y in place of y, y को minus y से replace करते हैं आप, there is no change in the equation of curve, ये x axis के about symmetric होगा। if degree of x is even, जब आप further पढ़ेंगे x square equals to 4ay को जब आप पढ़ेंगे, x square equals to 4ay, यहाँ पर आप देखें x की डिग्री इवन है, y को माइनस y करोगे इक्वेशन ऑफ कर्व चेंज हो जाएगी, लेकिन इन प्लेस ऑफ x अगर माइनस x रखेंगे आप, तो कर्व की इक्वेशन में चेंज नहीं होगा, ये कर्व y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। विल बी डिस्कसिंग अबाउट दैट कर्व आल्सो। ये भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, लेकिन ये बात समझा रहा हूं मैं आपको अबाउट द सिमेट्री। इन प्लेस ऑफ x if you keep minus x and if you are getting the same curve, y axis के about symmetric. In place of y if you keep minus y and if you are getting the same curve, that curve is symmetric about x axis, so curve x axis के about symmetric होगा। Then y square equals to 4ax, so y is nothing but plus minus 2a 2 root over ax। ठीक, एक बात और यहां पर आपको समझ में आना चाहिए, और वो ये, रूट एक्स इज देयर। क्या एक्स नेगेटिव वैल्यू ले सकता है? बिकॉज फॉर नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर रूट विल बिकम इमेजिनरी, कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म्स में आ जाएगा। इसका सीधा सा मतलब है एक्स मस्ट बी पॉजिटिव, एक्स पॉजिटिव होना चाहिए। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको हेल्प करेगी सो दैट यू कैन स्केच द कर्व। हाँ, पॉजिटिव वैल्यू के लिए सुनना जरा बात ध्यान से, पॉजिटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट पॉजिटिव, लेट्स से इफ इट इज 4, एक्स की वैल्यू अगर 4 है, 4 का स्क्वायर रूट 2, ये जो भी वैल्यू है, ए इज ऑल्सो गोइंग टू बी सम पॉजिटिव वैल्यू जो हमने लिया था अभी। तो प्लस माइनस साइन इज देयर। प्लस माइनस से क्या मतलब हुआ? एक्स की, लेट्स से इफ एक्स इज 4, जब एक्स की वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 इंटू 2 4, y की वैल्यू प्लस 4 भी होगी और माइनस 4 भी होगी। वैसे भी आपको पता लग गया कि इट इज ऑलरेडी सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, ये एक्सिस के, एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक कर्व है। तो ध्यान से देखिएगा, जब हम मैं इसे ड्रॉ कर रहा हूं, नाउ आई कैन ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ दैट कर्व। बोर्ड पे देखेंगे प्लीज, दिस इज द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ दैट कर्व। इसे डायरेक्ट्रिक्स का हमने, दैट इज द फिक्स्ड लाइन, इज द एक्सिस ऑफ द कर्व। पहले समझ लीजिएगा, that is the axis of the curve, which is x axis here, vertex of that curve which is 0, 0, which is origin, focus of that curve taken as a, 0, directrix is x equals to minus of a, and that curve is, since it is symmetric about x axis,
इट एग्जिस्ट ओनली फॉर पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एक्स, ये एक्स की केवल पॉजिटिव वैल्यूज के लिए एग्जिस्ट कर रहा है, बिकॉज एक्स कैन बी पॉजिटिव ओनली, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट इमेजिनरी हो जाएगा। और दूसरी बात, इफ एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी, एक्स अगर इंफिनिटी को टेंड करेगा तो वाई टेंड्स टू व्हाट, भाई जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ाओगे वाई की वैल्यू भी बढ़ेगी, प्लस माइनस देयर, वाई टेंड्स टू प्लस इंफिनिटी एज वाई टू माइनस इंफिनिटी। वैसे भी दोनों एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक कर्व है, द स्ट्रक्चर ऑफ दैट कर्व इज लाइक दिस, that is the structure of that curve. That curve is symmetric about x axis, ये x axis के about symmetric होगा, ये x axis के about symmetric है, ये केवल राइट साइड ऑफ ओरिजिन एग्जिस्ट करेगा क्योंकि x केवल पॉजिटिव वैल्यू ले पाएगा। ये आप स्ट्रक्चर समझ रहे हैं, बना दिया तो क्यों बना दिया, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x फटाफट ड्रॉ कर लिया, अरे क्यों, ये कर्व x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, इट विल टेक ओनली x पॉजिटिव वैल्यूज and corresponding to positive values of x, y will also take, y will take plus minus because plus minus sign is there। जब x की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हो आप, as x tends to infinity, बोले कहां तक जाएगी ब्रांच, अप टू infinity, as x tends to infinity, x की वैल्यू बढ़ेगी तो y की वैल्यू भी infinity होगी as well as minus infinity, because ये दोनों x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। अगर 100 होगा तो माइनस 100 भी होगा यहाँ पर y की वैल्यू, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दैट कर्व। तो यहाँ पे क्या क्या टर्म सुनी आपने, ये तो हमने स्ट्रक्चर देखा। सबसे पहले फोकस, दैट इज द फिक्स पॉइंट, मूविंग पॉइंट के डिस्टेंस फिक्स पॉइंट से और मूविंग पॉइंट के डिस्टेंस फिक्स लाइन से बराबर होगी। फिक्स पॉइंट फोकस, फिक्स लाइन डायरेक्ट्रिक्स, एक्सिस ऑफ द कर्व which is perpendicular to the directrix and passing through the focus. Curve meets the axis of that curve meets the axis at point vertex. कर्व कहां मीट करेगा एक्सिस को, तो वर्टेक्स पे मीट करेगा, ठीक है। एंड द रिमेनिंग टर्म्स आर, सुनिएगा ध्यान से, पहले हम देख लें एक बार, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, एक्सिस ऑफ द कर्व, एंड देयर इज अ टर्म डबल ऑर्डिनेट। ये सारी टर्म्स हैं जो आपके नॉलेज में होना चाहिए। डबल ऑर्डिनेट, व्हाट इज दैट डबल ऑर्डिनेट? डबल ऑर्डिनेट इज अ टर्म any chord to the curve, any chord to the curve which is perpendicular to the axis of parabola, पैराबोला की एक्सिस के परपेंडिकुलर, पैराबोला की एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो यहां पर जब आप देखेंगे, ध्यान से देखिएगा प्लीज, all these are nothing but the double ordinates, ये सारे के सारे double ordinates हैं। any chord which is perpendicular to the axis, जो भी chord एक्सिस के, क्योंकि यहाँ पर एक्सिस ऑफ द पैराबोला एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर जो भी chord होगी कर्व को, वो डबल ऑर्डिनेट होगी, राइट। एंड लेटस रेक्टम, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, लेटस रेक्टम, ये डबल ऑर्डिनेट का एक स्पेशल केस है। और कैसा स्पेशल केस? इट्स अ डबल ऑर्डिनेट, इट्स अ डबल ऑर्डिनेट passing through focus which is a, 0। a, 0 से यहां पर जो डबल ऑर्डिनेट पास करेगा, ध्यान से देखिएगा, दैट इज द फोकस जो मैंने लिया है, डबल ऑर्डिनेट। लेकिन कैसा डबल ऑर्डिनेट? जो कि फोकस से पास कर रहा है और एक्सिस के परपेंडिकुलर है। और ये जो डबल ऑर्डिनेट है, मैंने इसीलिए सारे ड्रॉ तो कर दिए मैंने यहां पर, एल डैश जो डिनोट कर रहा हूं मैं, एल डैश आर नथिंग बट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ, एल डैश क्या है? एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम की एक्सट्रीमिटीज हैं। लेटस रेक्टम पासिंग थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, एंड इट्स ए स्पेशल केस ऑफ डबल ऑर्डिनेट। डबल ऑर्डिनेट का ये स्पेशल केस है।
आ रही है बात समझ में सब कुछ? अगर मैं आपसे पूछता हूं कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम की लेंथ क्या होगी, ये बेसिक्स हैं जो आप बहुत डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, बहुत आवश्यक। इफ आई आस्क यू हाउ कैन यू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जो कि a,0 से पास कर रहा है और एक्सिस के परपेंडिकुलर है, लेकिन मैं अगर आपसे लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम पूछता हूं, इक्वेशन ऑफ कर्व इज y² = 4x, ठीक है। इफ आई आस्क यू द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, आई वांट द लेंथ ऑफ LL', हाउ कैन यू फाइंड आउट LL'? सुनिएगा ध्यान से। If I ask you the coordinates of L and L', anybody can suggest me L और L' के coordinates क्या होंगे? मान लीजिए देखो x एक्सिस के परपेंडिकुलर है, x कोऑर्डिनेट तो फिक्स होगा इसका, x कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा ना, x एक्सिस के परपेंडिकुलर है। लेट्स से इट इज a, y1, y will change there, y value y1 कुछ। Can you tell me the coordinates of L'? -a, नो इट्स नॉट -a, a तो a ही रहेगा, a, -y1, यस, क्योंकि ये सिमेट्रिक है ये एक्सिस के। अगर ये पॉइंट L पॉइंट अगर a, y1 है तो L' पॉइंट a, -y1 होगा। सुनना जरा ध्यान से, टोटल लेंथ कितनी होगी LL' की? कहां से आ गया 4 है, अभी तो नहीं आया। LL' की लेंथ है टोटल 2y1, लेकिन मुझे y1 नहीं पता अभी। हाउ कैन आई फाइंड आउट y1? a, y1 is point on parabola y² = 4ax। a, y1 सेटिस्फाई करेगा, y1² will be equals to 4a into a, 4a² y1 होगा, ध्यान से देखिएगा, y1 will be equals to ±2a। L क्या हो गया? a, y1 2a, a we have taken पॉजिटिव, राइट साइड में लिया, पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर करके चल रहे हैं, a, 2a। व्हाट अबाउट a, -2a? और अगर मैं आपसे पूछता हूं लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू होगा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम विल बी इक्वल्स टू 4a, वो 4a के बराबर होगा। दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कर्व एंड दैट इज द वेरियस टर्म्स एसोसिएटेड विद द कर्व पैराबोला। आई बात समझ में आपको? आई हैव टेकन अ स्टैंडर्ड केस, ये एक स्टैंडर्ड केस लिया। बोले सर स्टैंडर्ड केस क्यों बोल रहे हो? स्टैंडर्ड केस इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज वी हैव टेकन द एक्सिस ऑफ पैराबोला एज एक्स एक्सिस, वी हैव टेकन द फोकस ऑन द एक्स एक्सिस, वी हैव टेकन द वर्टेक्स एज 0, 0, वी हैव टेकन द डायरेक्ट्रिक्स परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। लेकिन वो कर्व तो कैसा भी हो सकता है, जो भी कर्व SP = PM को फॉलो करेगा वो पैराबोला होगा, लेकिन हमने जो डिराइव किया है वो स्टैंडर्ड फॉर्म किया है। इनफैक्ट देयर आर 4 स्टैंडर्ड फॉर्म्स, 4 स्टैंडर्ड फॉर्म होंगे जिनके बारे में हम बात करेंगे, बट दैट इज द फर्स्ट वन। और इस फर्स्ट वन में जहां पे y² = 4ax, वर्टेक्स ऑफ दैट कर्व 0, 0, फोकस ऑफ दैट कर्व a, 0, एक्सिस ऑफ दैट कर्व x एक्सिस, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ दैट कर्व इज x = -a, राइट? Double ordinate is any chord which is perpendicular to the axis of curve is double ordinate. y² = 4ax, it is symmetric about x axis. The structure of that curve, है ना? It is symmetric about x axis and it exists only for positive values of x. x की positive values के लिए exist कर रहा है, and as x tends to infinity, y tends to infinity as well as -infinity because it is symmetric. ऐसे भी समझ में आती है बात। डबल ऑर्डिनेट की बात करें तो जो भी कॉर्ड एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी तो डबल ऑर्डिनेट होगी, बट लेटस रेक्टम में स्पेशल केस है डबल ऑर्डिनेट का, जबकि ये फोकस से पास करता है। सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, वो भी हमने डिराइव किया यहाँ पर, a, y1, a, -y1, I have taken the points as, yeah, I have taken the extremities of the latus rectum. a, y1, how can we find out y1? लेटस रेक्टम की लेंथ फाइंड आउट करना, a, y1 is a point on the curve, सेटिस्फाई किया आपने, y1 = ±2a,
and you got the length of latus rectum. ठीक है. So we have discussed the case of y square equals to 4ax standard form. Now look for the second standard form, which is y square equals to minus of 4ax. So y square equals to minus of 4ax. Again, if you observe here, that's the second standard form. Y square equals to minus of 4ax. This curve is again going to be symmetric about x-axis. ये x-axis के about symmetric होगा. The reason is, in place of y, if you keep minus y, equation of curve remains unchanged. And the same explanation as just now we have discussed for y square equals to 4x. If we draw the structure of that curve y square equals to minus 4x, that structure is like this is the directrix, vertex of that curve, focus of that curve, y square equals to minus 4x. Axis of the curve, that axis of the curve is x-axis only. Axis of the curve is x-axis. Tick. Vertex of that curve, point where curve meets the axis, is again origin. We are discussing the standard form. Vertex of that curve is nothing but the origin. We are taking the focus that is A. This is again A. We are taking the focus on the left side of that focus. पहले समझिएगा. Focus के coordinates minus a comma 0. If I ask you the equation of directrix, y-axis के parallel, x is constant, x is equals to a, x की value a के बराबर होगी, right? Again the term double ordinate, any chord which is perpendicular to the axis is x-axis, है ना? Any chord which is perpendicular to the axis of the parabola is double ordinate. And latus rectum is a special case of double ordinate. Latus rectum एक special case है double ordinate का, LL dash, है ना? Latus rectum एक special case है double ordinate का, जहाँ पर it is passing through the focus and perpendicular to the axis. And again, if I ask you the length of latus rectum, LL dash की length, it is nothing but 4a. If I ask you the extremities of latus rectum, it is minus a, because x coordinate is minus a comma 2a. X is positive, y is positive here in the second quadrant. It is minus a comma minus 2a. Standard form, vertex of that parabola, origin 0 comma 0, focus is minus a comma 0, directrix is x equals to a, axis of the curve is x-axis, right? If I ask you the tangent at the vertex, tangent at vertex, vertex पे tangent अगर मुझे लिखना, anybody can suggest? See as tangent at the vertex, vertex per tangent, tangent to the curve, y-axis. Y-axis is nothing but the tangent at the vertex, और y-axis मतलब x equals to 0. In fact, in the previous case also, वहाँ पर भी mention कर लीजिएगा, for y square equals to 4x, tangent at the vertex, vertex per tangent y-axis. That is the structure of the second curve, y square equals to minus of 4x. I have taken a positive ना, a positive लेते हुए बात कर रहे, या सुनना ध्यान से. The first one which we have discussed, that was y square equals to 4ax. That curve is, yes, it's a standard form of parabola, opening rightwards parabola. सुनिएगा, opening rightwards parabola, as x can take only positive values here. X केवल positive values ले पाएगा. It's a rightwards parabola.
ठीक है. If you take y square equals to minus of 4x, that's a parabola opening leftwards parabola. क्योंकि यहां पर इस केस में x will take only negative value. देखो आप वर्टेक्स से केवल लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यूज देगा ये. द रीजन इज आप कहें सर ऐसा क्यों, देखो ना आप इसको लिख सकते हो y square equals to 4a is some positive value minus of x, तो y will be equals to plus minus 2 root a into root over minus x. स्क्वायर रूट के अंदर एक्सप्रेशन पॉजिटिव होने के लिए आवश्यक है माइनस एक्स, तो एक्स नेगेटिव होगा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बनेगा. इट्स अ लेफ्टवर्ड्स ओपनिंग पैराबोला. y square equals to minus of 4x. Both the curves y square equals to 4x as well as y square equals to minus 4x, ये दोनों कर्व x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक. ठीक है. For the first two standard curves, y square equals to 4x, then y square equals to minus of 4x. Both the curves symmetric about x axis के about symmetric है. Both the curves are having focus on the x axis. दोनों curves के focus जो है x axis के ऊपर है. Those are the standard forms. Vertex for both the curves are origin 0, 0. Y square equals to 4x is the rightwards parabola and y square equals to minus 4x is the leftwards opening parabola. But if I take the fixed point, ये हम standard form discuss कर रहे हैं और इन दोनों cases में जो fixed point है, जो focus है, that has been taken on the x axis. But if you take the fixed point, if you take the first fixed point on the y axis, अगर fixed point को आप y axis पे लेते हैं, तो fixed point को अगर आप y axis पे लेते हैं, in that case there is going to be third case which is going to be standard case, and that is x square equals to 4ay. वो होगा x square equals to 4ay, right? Here degree of x is 2, x square equals to 4ay. That's the third standard form. The structure of that curve, that's a parabola. Yes, it's a parabola opening upwards parabola. ये कैसा parabola? ये opening upwards parabola है, right? ये opening upwards parabola है. Axis of that curve has been taken as y-axis. Axis of that curve is y-axis. Y-axis is the axis at which fixed point has been taken, जहाँ पर fixed point लिए गए, right? Vertex of that curve, we are discussing the standard form. It is again 0, 0. Origin is this vertex for all four curves जो आप discuss करने वाले हैं, जो दो हमने किए हैं और जो दो अभी कर रहे हैं. Focus of that curve, focus is clearly on the y-axis. Y-axis x coordinate is 0. That's 0, a. This is a. It's also equals to a. Directrix, the directrix is perpendicular to the axis of parabola. Axis of parabola is y-axis. Y-axis के perpendicular line. तो y-axis के perpendicular, x-axis के parallel. X-axis के parallel मतलब y constant. Y constant मतलब y equals to minus of a. In the जैसे हमने y square equals to 4x का derivation किया था, in the similar manner we can derive the for this parabola. जहां पर फोकस 0, a लीजिएगा और y इक्वल टू माइनस a को डायरेक्ट्रिक्स लीजिएगा, you will be getting the parabola as x square equals to 4ay. So it's opening upwards parabola having vertex 0. Focus of that curve is 0, a. Directrix of that curve is y equals to minus of a. That curve is symmetric about y-axis. ये y-axis के about symmetric होगा. It is symmetric about y-axis. As degree of x is even, in place of x if you keep minus x, equation of curve remains unchanged. Double ordinate the same term, chord which is perpendicular to the axis, AC chord जो कि axis के perpendicular और double ordinate, ठीक, and then chord double ordinate special case latus rectum passing through the focus. इट्स ए स्पेशल केस व्हेन फोकस से पास कर रहा है डबल ऑर्डिनेट,
right, and perpendicular to the axis. Again, if I take the extremities of the lateral rectum as L and L dash, extremities of the lateral rectum को L और L dash लेता हूं मैं, focus is 0, a, L L dash, ठीक, and the length of lateral rectum that is equals to 4a. एक्सट्रीमिटीज की जब बात की जाएगी 0, 2a है ना, y कोऑर्डिनेट फिक्स रहेगा a, इट इज 2a, a minus 2a, a, and length of lateral rectum is going to be equals to 4a. Tangent at the vertex, it's not y axis, वर्टेक्स पर टेंजेंट जब ड्रॉ करोगे x axis, y is equals to 0. So that much information must be in there in your mind. For the curve, we have discussed the curve, third standard form, x square equals to 4ay. ठीक है, यहाँ पर भी इन द सिमिलर मैनर, जब आपने एक बार कर्व की इक्वेशन डिराइव किया तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, ऐसा ही स्ट्रक्चर क्यों हुआ सर? x इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 रूट ओवर a रूट ओवर y, square root of y is always going to take only positive values, है ना, positive values including 0, y only greater than equals to 0 वैल्यू लेगा. प्रीवियस दोनों केस में x की वैल्यूज पॉजिटिव या ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लिखूंगा मैं, उसको इक्वल टू 0 पे 0 हो जाएगा, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. एंड एज y टेंड्स टू इंफिनिटी, अगर y इंफिनिटी को टेंड करेगा, है ना, तो दिस कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस. y अगर इंफिनिटी को टेंड कर रहा है, y की वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो इस केस में जो x होगा वो प्लस इंफिनिटी, या ये कहिए कि ठीक है ना, इफ x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, y विल टेक पॉजिटिव वैल्यूज, तो y अगर प्लस इंफिनिटी लेगा तो x विल टेक, इसलिए जो ब्रांच होगी वो इनफाइनाइट ब्रांच होगी, प्लस इंफिनिटी एज वेल एज माइनस इंफिनिटी. बट दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कर्व. आपके लेवल से काफी ठीक ठाक इंफॉर्मेशन है ये, जो आपके दिमाग में होना चाहिए. एंड फाइनली लुक फॉर द फाइनल केस स्टैंडर्ड फॉर्म, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ऑफ 4ay. एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ay, again x square equals to minus 4ay, axis of that curve, that's a parabola opening downwards, parabola downwards opening रहेगा ये. vertex of that curve 0, 0. अब तक आपको समझ में आ चुका है. we are discussing the standard form for all 4 curves. y square equals to 4x, y square equals to minus 4x, x square equals to 4ay, and x square equals to minus 4ay. vertex of that curve is 0, 0. axis of the parabola, y-axis. y-axis is the axis of parabola. y-axis axis of the parabola है. axis के ऊपर फोकस होगा, राइट, जीरो कॉमा माइनस ए. इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स दैट इज पैरेलल टू x axis, x axis के पैरेलल y कांस्टेंट, y will be equals to a, that is the directrix of that curve. ये कर्व की डायरेक्ट्रिक्स होगी, राइट. वर्टेक्स 0, 0, फोकस 0, माइनस a, डायरेक्ट्रिक्स इज y equals to a, axis of the curve is y axis. Double ordinate, any chord which is perpendicular to the axis of curve. And lateral rectum is special case of double ordinate which is perpendicular to the axis of curve and passing through the focus. And length of lateral rectum, again if you talk about the length of lateral rectum, that will be equals to 4a, right. y coordinate fixed है, right. 0, minus a, it is going to be 2a, minus a. Extremities of lateral rectum minus 2a, minus a. So that information comes for you. That's the opening downward parabola. Degree of x is 2. That curve is also symmetric about y axis. ये भी curve y axis के about symmetric होगा, ठीक है, and it is opening downwards parabola. So we have discussed 4 standard form.
y square equals to 4x, y square equals to minus 4x, x square equals to 4ay and x square equals to minus of 4ay. ये चारों स्टैंडर्ड फॉर्म है. ठीक. फॉर द फर्स्ट टू y square equals to 4x and y square equals to minus 4x, x axis is the axis of parabola, and for x square equals to 4ay and x square equals to minus 4ay, y axis is the axis of parabola. ठीक है. So that's also about the standard form. लेकिन अभी जो हमने डिस्कशन किया दैट इज अबाउट द स्टैंडर्ड फॉर्म, वो डिस्कशन था अबाउट द स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना, चारों स्टैंडर्ड फॉर्म. लेकिन ये बात तो आप ध्यान रखने वाली बात है कि इन केस ऑफ पैराबोला, पैराबोला इट नीड नॉट टू बी इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. इफ यू रिमेंबर फर्स्ट टू केसेस या फर्स्ट टू क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किए थे, जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला, देयर इज द टर्म ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई कांस्टेंट टर्म. कंडीशन फॉर दैट इज एच स्क्वायर मस्ट बी इक्वल्स टू ए बी एन. जो एक्स वाई या जो सेकेंड डिग्री टर्म्स हैं दोज फॉर्म्स ऑफ परफेक्ट स्क्वायर देयर. ये जो चारों फॉर्म्स देखें दोज आर द स्टैंडर्ड फॉर्म्स. इन जनरल तो जहां पर एस पी इक्वल्स टू पी एम सेटिस्फाई होगा, मूविंग पॉइंट के डिस्टेंस फिक्स पॉइंट से और मूविंग पॉइंट के डिस्टेंस फिक्स लाइन से अगर सेम रहेगी तो दैट कर्व इज गोइंग टू बी अ पैराबोलिक कर्व. दैट स्ट्रक्चर कुड बी लाइक एनी, this could be the structure of that curve. It's not x axis or x axis or y axis is not the axis of that curve. कुछ भी ठीक है, that's the straight line. But the only point is जो requirement है वो ये requirement है कि SPPM के बराबर होना चाहिए. But terms तो same ही रहने वाली हैं. This is the axis of parabola. That is the thing, but directrix which is perpendicular to the axis. Directrix. Axis के ऊपर focus होगा जो कि x1 y1. Equation of directrix it could be any equation, straight line x plus by plus c equals to 0. That's nothing but the vertex. We have discussed the standard form. तो standard form में तो ठीक है कि 0,0 is the vertex there. But here could any point could be the vertex here. Latus rectum terms तो सब सेम रहने वाली हैं. Chord which is perpendicular to the axis. डबल ऑर्डिनेट का एक स्पेशल केस जो कि एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, तो लेटस रेक्टम. ठीक है ना. तो इन जनरल तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि P equals to PM सेटिस्फाई होता, दैट्स द कंडीशन इज एच स्क्वायर मस्ट बी इक्वल्स टू ए बी. और जो सेकंड डिग्री टर्म्स होंगी इक्वेशन ऑफ कर्व में वो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर बनाती है. ठीक. इफ आई टेक ए स्टैंडर्ड केस, an equation of curve as y square equals to 18x. The equation of curve is y square equals to 18x. और आपसे कहा गया इस कर्व के स्ट्रक्चर के बारे में आपको आइडिया लगाना है. What is the structure of that curve? आपने ऑब्जर्व किया यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ x is positive here. तो कोएफिशिएंट ऑफ x square positive, कोएफिशिएंट ऑफ x is positive here. y square equals to 18x. That curve is opening rightwards parabola. And you are going to compare it with y square equals to 4x. You are going to compare it with y square equals to 4x. Y square equals to 4x से आप इससे कंपेयर करेंगे. What is that value of latus rectum here? Latus rectum की लेंथ क्या होगी यहाँ पर? Coefficient of x which is 18 here, है ना. लेंथ ऑफ latus rectum that would be 18. वो 18 के बराबर होगा, राइट. तो 4a is equals to 18. a will be equals to 18 by 4 और 9 by 2. ठीक. y square equals to 18x. Curve is clearly opening rightwards parabola. Vertex of that curve is clearly 0,0. Vertex उस कर्व का 0,0 होगा. If I ask you the focus of that curve, can you tell me that curve? Focus of that curve, a, 0, 9 by 2, 0. Yes, 9 by 2, 0. If I ask you the equation of directrix, तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन x इक्वल्स टू माइनस ए, तो x इक्वल्स टू माइनस 9 by 2.
स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। That is some 9 by 2 comma 0, that is the focus. Vertex is 0 comma 0. Equation of directrix is x equals to minus of 9 by 2. Length of latus rectum, that is the length of latus rectum, and that is nothing but equals to 18. टोटल जो 4a है वो 18 के बराबर है, तो लेटस रेक्टम की लेंथ तो 18 है, राइट।